I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. And congratulations. उसके बाद पहली रेस 150 किलोमीटर से सेकंड पोजीशन होल्डर हमारे क्लब के प्रेसिडेंट जब्बार खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा उस्मान गनी भाई से कि आए और जब्बार खान को उनकी सेकंड पोजीशन की ट्रॉफी दें। प्लीज तालियों से एप्रिशिएट कीजिएगा। यही फील होती है, सबकी हौसला अफजाई होती है। प्लीज प्लीज सब भाइयों के लिए खाने का अच्छा इंतजाम किया गया। टेंशन वाले एनर्जी आपकी बाहर करेंगे अभी। प्लीज तालियां आपकी चाहिए होंगी हमें। उसके बाद पहली रेस बिलासपुर 150 किलोमीटर से पहली पोजीशन हमारे यंग फेंसियर, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, मैं नासिर नायब भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए प्लीज। और जिशान अफसर फर्स्ट पोजीशन 150 किलोमीटर। थैंक यू दिशान, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारे पहली रेस के 3 पोजीशन होल्डर से। उसके बाद हमारी दूसरी रेस जो कि 225 किलोमीटर हवाई फासला मुल्तान से रहीम खान का था, उसमें थर्ड पोजीशन पे थर्ड पोजीशन के लिए मैं आसिफ बबरो साहब से गुजारिश करूंगा प्लीज स्टेज पे आए और हमारे थर्ड पोजीशन होल्डर काशिफ कंबो साहब को उनकी ट्रॉफी देते हैं। थैंक यू आसिफ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन काशिफ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उसके बाद सेकेंड रेस के 225 किलोमीटर से सेकेंड पोजीशन होल्डर फराज भाई से गुजारिश करूंगा कि फराज भाई आके जुबैर असलम सेकंड पोजीशन।
ओके ओके, ये वो कहते हैं इस ऑल अबाउट टीम वर्क, ये पूरी टीम फ्लाइंग ऑफ की पूरी टीम ट्रॉफी वसूल कर रही है। कांग्रेचुलेशन जुबैर। उसके बाद हमारी सेकंड रेस 225 किलोमीटर हवाई फासले के जो चैंपियन करार पाए, वो चैंपियन मैं नासिर नाइक भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और जब्बार खान नियाज़ी फर्स्ट पोजीशन। थैंक यू नाज़िम भाई, जज़ाकल्लाह। कांग्रेचुलेशन के बाद ये हमारी सेकंड रेस के चैंपियन थे। उसके बाद हमारी तीसरी रेस जो हमने मुनक्किद की 300 किलोमीटर अब्दुल हकीम से, 300 किलोमीटर हवाई फासला से अब्दुल हकीम से रहीम खान तक का, उसमें फहद शाह भाई मुल्तान से, फहद शाह भाई से गुजारिश करूंगा आए और थर्ड पोजीशन होल्डर जुबैर असलम प्लीज। जी सामने वेट कीजिएगा। तो मेरी सेकंड पोजीशन के लिए मैं फराज भाई से गुजारिश करूंगा काशिफ को अपनी सेकंड पोजीशन के लिए ट्रॉफी रिसीव करेगी। तालियां बजाते हुए अपनी कीजिएगा हमारे बच्चों को, मुझे तालियां देने में हौसला मिल सकती है। थैंक यू काशिफ। हमारे थर्ड रेस के 300 किलोमीटर अब्दुल हकीम से जो चैंपियन थे हमारे, बिल्कुल हमारी क्लब के सबसे यंग फैंसियर और बड़े मोटिवेटेड फैंसियर एहसान कम्बो फर्स्ट पोजीशन चैंपियन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारकबाद एहसान आपको। ये हमारे क्लब के यंग सबसे यंग फैंसियर है और बड़े मोटिवेटेड फैंसियर है। थैंक यू सो मच। इसके बाद आगे हमारे क्लब के सदर जब्बार भाई से गुजारिश करूंगा कि वो फोर्थ रेस के इनामात की अनाउंसमेंट करें और प्लीज़ ये थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा जब्बार भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो जी, हमारी फोर्थ रेस जो है ये फैसलाबाद से थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट हुए इस रेस में। और इस रेस में जो थर्ड पोजीशन है उसका प्राइज़ देने के लिए और मैं रियाज भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, रियाज भाई प्राइज़ दीजिएगा और प्राइज़ वसूल करेंगे थर्ड पोजीशन का तारक वसीम साहब। बहुत बहुत मुबारक हो तारक भाई। जी देखिएगा सामने उधर विजय भाई। ओके और सेकंड पोजीशन का प्राइज देने के लिए मैं बुलाऊंगा उस्मान भाई को। उस्मान भाई आइएगा और सेकंड पोजीशन होल्डर हमारे जुबैर असलम साहब प्लीज आइएगा और अपना प्राइज शुरू कीजिए। क्लैपिंग करते हैं भाई तमाम दोस्त। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया। जी इसके बाद
बारी है फर्स्ट रेस की और फोर्थ रेस हमारी जो थी फैसलाबाद की, तो उसके जो चैंपियन है तो उनको प्राइज देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा नासिर भाई से। नासिर भाई प्लीज आइएगा। और फोर्थ रेस के हमारे जो चैंपियन है काशिफ कंबो साहब, प्लीज आइएगा। जी और इसके बाद मैं माइक हवाले करने में लगा हूँ तला भाई के। तला भाई प्लीज आइएगा। थैंक यू जवाहर, थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारी फाइनल रेस जो कि यहाँ पे मैं सब जितने भी भाई हमारे मेहमान आए हुए हैं उनसे एक बार चाहूँगा कि वो अपनी तालियों से जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्हें अप्रिशिएट करें। हमारे 10 फ्रेंड्स में क्योंकि ये हमारे रहीमिया खान देसी फिल्म क्लब का और रहीमिया खान की हिस्ट्री में सबसे लंबी रेस खेली गई और एक कामयाब रेस हुई अल्हम्दुलिल्लाह 530 किलोमीटर की गुजरावाला से रहीमिया खान तक। और इसमें हमारे जो थर्ड पोजीशन होल्डर्स हैं 530 किलोमीटर के, उनसे मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद नदीम आए और फहाद शाह भाई से अपनी ट्रॉफी नसीब करें। मोहम्मद नदीम। इधर देखो, इधर 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 देखो, सामने खड़े हो जाओ, ऐसे इधर देखिए। थैंक यू, थैंक यू नदीम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू फार साहिब। उसके बाद हमारे फाइनल रेस 530 किलोमीटर से जो सेकंड पोजीशन होल्डर है हमारे रहीमिया खान देसी फिल्म क्लब के प्रेसिडेंट, सेकंड पोजीशन होल्डर जवाहर खान। फराज भाई प्लीज, जवाहर खान। प्लीज सब भाई से गुजारिश है तालियां बजा के हौसला अफजाई कीजिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो जवाहर, बहुत अच्छा खेला सब भाइयों ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। थैंक यू फराज भाई। इसके बाद हमारे फाइनल फिफ्थ रेस के चैंपियन 530 किलोमीटर गुजरावाला से रहीमिया खान। मैं आज के चीफ गेस्ट से गुजारिश करूंगा रियाज महमूद भाई से कि प्लीज़ यहाँ पे आके हमारे फिफ्थ रेस के फर्स्ट पोजीशन होल्डर चैंपियन जुबैर असलम फ्लाइंग हॉर्स सामने थैंक यू जी। मैं यहाँ पे ये तो हमारी 5 रेसेस हमने 2022 में खेली और हमारे 10 पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ, हमारे इस इवेंट को कामयाब बनाने में हमारे कुछ जज साहिबान होते हैं, मुंसिफ साहिबान होते हैं, उनके बगैर हमारी सारी रेसेस अधूरी हैं, क्योंकि वही भाई हैं जिनकी वजह से हमारी रेसेस कामयाब होती हैं। उनका हम शुक्रिया अदा करने के लिए हमने उनके लिए एक आप कह सकते हैं टोकन ऑफ लव रखा है, छोटा सा एक गिफ्ट टेम्पल, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। उनके मैं नाम लेता जाऊँगा और उनसे गुजारिश करूँगा आए वो अपना टोकन ऑफ लव हमसे रिसीव करें, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारी रेसिंग को कामयाब बनाते हैं। बैठते हैं 5-5, 6-6, 8-8 घंटे बैठते हैं और टाइम क्लोज करवाते हैं। यहाँ पे हमारे 2 साथी हमारे रहीमिया खान क्लब के एक और क्लब है, हमारे पुराने साथी आए हुए हैं, उनका मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने टाइम निकाला। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा अमानुल्लाह भाई से कि वो आए और अमानुल्लाह साहब की तशरीफ लाइएगा, हमारे मुझे भगवान को गिफ्ट टेम्पल दीजिएगा। प्लीज़ तालियां कीजिएगा अमानुल्लाह साहब।
प्लीज उमर प्लीज तशरीफ लाइएगा। उमर प्लीज सब भाइयों के लिए तालियां बजाइएगा। ये भाई हैं जिनकी वजह से हमारी इवेंट्स कामयाब होते हैं। थैंक यू उमर। प्लीज उमर थैंक यू उमर। मानो भाई प्लीज। उसके बाद हमारे मुंसब है असद फारूक साहब। असद फारूक थैंक यू सर। थैंक यू सर। उसके बाद शहरोज थैंक यू शहरोज। उसके बाद एहसान से कहूँगा अपने मुंसब की जगह अपना ये फोटो सीख करें। एहसान कम्बो और हमारे पांचवें मुंसब जो है वीजे वीजे इधर थैंक यू माला भाई। थैंक यू तशरीफ रखिएगा। उसके बाद हमारे बहुत पुराने साथी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उनको इनवाइट किया, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। वो टाइम निकाला उन्होंने। बिलाल भाई प्लीज आप तशरीफ लाइएगा। मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैं बताता चलता हूँ शो में 2014 से लेकर आज तक मेरे साथ जो पुराने साथी हो शुरू से मेरे साथ रहे हैं। अल्लाह ने खुश रखे। थैंक यू बिलाल भाई, आपने टाइम निकाला। आप आए। आप बाकी कुछ मुझसे बताते हैं। हमारे मुन्ना भाई हैं, प्लीज मुन्ना भाई आएगा और अपना गिफ्ट रिसीव कीजिएगा। प्लीज तालियां बजाइएगा। सब प्लीज तालियां बजाइएगा। थैंक यू मुन्ना भाई। उसके बाद अहमद सोलंकी बहुत शुक्रिया अहमद। उसके बाद वलीद असरा गुजारिश है के साथ की हौसला अफजाई कर ले। यही वो मुझसे बदलाव है जिनकी वजह से हमारी सारी रेसेस कामयाब हो पाती हैं। उसामा प्लीज आप आइएगा। उसके बाद हमारे आखिरी मुंसब है अनवारुल हक। प्लीज तालियां बजाइएगा। थैंक यू सो मच। आपके टाइम का शुक्रिया। उसके बाद मैं बताते चलूँ कुछ हमारे साथी जो कि हमारी रेसिंग कमेटी जो होती है सबसे टफ ड्यूटी जो होती है, क्योंकि ऑल द वे गाड़ी के साथ बर्फ लेके जाना, जितनी भी डिस्टेंस हमने डिफरेंट लोकेशन से अपने बर्फ रिलीज किए। रेसिंग कमेटी के हमारे कुछ साथी जो कि साथ गाड़ी के जाते हैं और ऑल द वे तक सफ़र करके जाना और सफ़र करके वापस आना, हमने उनके लिए भी शीट रखी है। उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके लिए मैं अपने भाई फहद शाह से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आके मोहम्मद अजीम भाई को ट्रॉफी कीजिए। मोहम्मद अजीम भाई प्लीज़ थैंक यू अजीम भाई। जज़ाकल्लाह अजीम भाई का हमारा बहुत पुराना साथ है। 2015 से लेकर हमें टाइम देते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सदीक नियाजी साहब प्लीज तशरीफ लाइएगा। थैंक यू फादर, थैंक यू सदीक साहब। उसके बाद मैं अपने
अपने यंग फैंसियर से मैं गुजारिश करूँगा रताश से कि प्लीज वो आके हमजा सर को उनकी शीट दे। रताश ये हमारी फील्ड में सबसे यंग फैंसियर है और बहुत अच्छे शौकीन हैं। थैंक यू सो मच हमजा, आपका शुक्रिया। थैंक यू रताश, जज़ाकल्लाह। उसके बाद अच्छा सब भाई से गुजारिश है प्लीज जरा प्लीज सुनिएगा। ये तो थे हमारे मुंसिफ हजरात जिन्होंने हमें टाइम दिया, हमारी रेसिंग कमेटी के मेंबर्स जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, हमारे पार्टिसिपेंट जिनकी अपनी ट्रॉफी दी और हौसला अफजाई की। उसके बाद सबसे आखिर में हमारे वो पार्टिसिपेंट हमने उनकी हौसला अफजाई की। मैं ये यहाँ पे जरूर बताना चाहूँगा, हमारे 10 पार्टिसिपेंट ने ये रेसेस खेली सारी, 3 पार्टिसिपेंट थे जिनकी कोई पोजीशन नहीं आई। मगर ये बात सुनिएगा सब भाई, जो भी शौकीन है नए या पुराने शौकीन है, मेरी नज़र में हर वो बंदा चैंपियन है जो खेलता है, जो कोशिश करता है। इन 3 भाइयों के लिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा, खासकर आपने तालियां बजानी है, क्योंकि ये वो भाई हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान में काफ़ी सालों से कई क्लब बने हुए हैं, जिनको कई साल लगे एक अच्छे फासले पे पहुंचने में। मगर ये भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ पहले साल खेला और पहले साल में उन्होंने 530 किलोमीटर हवाई फासले का हदफ टच किया। मैं इनकी बहुत बड़ी हिम्मत समझता हूँ, क्योंकि उनका खेलना ही उनकी हिम्मत है और उनकी यही पोजीशन है, उनकी यही ट्रॉफी है। मेरी नज़र में वो तीनों भाई चैंपियन है। मैं नासिर नायब भाई से गुजारिश करूँगा आए और इन तीनों भाइयों की हौसला अफजाई करें। इनके लिए हमने स्पेशल ट्रॉफी बनाई है। सबसे पहले उस्मान खान अब्बासी साहब, प्लीज़ उनके बिहाफ पे सदीक भाई आप आगे उसके बाद हमारे यंग फैंसियर एक और ये तीनों वो भाई हैं जिन्होंने पहला सीजन रेसिंग में कदम रखा और पहले सीजन में उन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म से खेलने का मौका मिला। रही है क्लब के शुक्रिया, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की वजह से ही ये रेसिंग हुई और इन्हीं भाइयों ने हमारे प्लेटफॉर्म पे खेला। उसके बाद आलम शेर प्लीज, थैंक यू आलम शेर, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर कमिंग ईयर्स। उसके बाद सबसे आखिर में हमारे एक पुराने खिलाड़ी हैं, मगर उन्होंने हमारे साथ रेसिंग में पहली दफ़ा हिस्सा लिया, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक असलम साहब प्लीज आए और अपनी एक बार दोबारा तालियां तीनों भाइयों के लिए जिन्होंने पहला सीजन खेला। ये तो थी हमारी इनामात सारे भाई जिन्होंने हिस्सा लिया, जो मुझसे बर्दाश्त थे, जिन्होंने हमें टाइम दिया, जो रेसिंग कमेटी थी जिन्होंने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद एक बार मैं सब भाइयों से गुजारिश करूँगा, मेरे जितने भाई दूर दूर से एक दिन का ट्रैवल करके फासला तय करके आए, सक्खर से लेके पंजाब के ऊपर तक, पिंडी से, लाहौर से, मुल्तान से, गुजरावाला से, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चार चांद लगाए हैं, मैं इनका दिल की कर, मेरे पास अल्फाज नहीं है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई से फराज बिन तारिक जिंदो साहब, रावलपिंडी रेसिंग क्लब के प्रेसिडेंट हैं, कि वो आए और प्लीज़ हमें अपने इस शो के मुताबिक प्लीज़ हमें कुछ गाइड करें। फराज भाई थैंक यू। सबसे पहले सबसे पहले मैं रहीम यार खान का शुक्रिया अदा करूँगा। अब बेसिकली रहीम यार खान एक शहर का नाम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो शहर, कोई भी शहर हो, उसमें जब लोग वहाँ पे बसते हैं तो बेसिकली वो लोग ही उस शहर का नाम होते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी
और हमेशा से रहीम यार खान से मोहब्बतें लेकर गए। और मेरा ख्याल है कि ये वो मोहब्बतें थी कि जिन्होंने हमें दोबारा मजबूर किया कि हम यहाँ पे आए। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं दूँगा, बातें बहुत सारी है करने के लिए, लेकिन टाइम को मद्देनजर रखना है। रहीम यार खान रेसिंग फिल्म क्लब की पूरी मैनेजमेंट का और पूरी टीम का मैं तहे दिल से मशहूर हूँ कि जिन्होंने इस काबिल समझा, इज्जत बख्शी और हमें अपनी खुशियों में शामिल होने का मौका दिया। तमाम नाज़रीन महफिल जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों ने हमारे लिए अभी जो मेहमान थे उनके लिए बड़ी पुरजोर ग्राफिक की जो इससे पहले अभी तक नहीं हुई थी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने लिए एक दफ़ा ज़रा भरपूर तरीके से तालियां बजाएं। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसर करता चलूँ। यहाँ पे बहुत सारे भाई आज यहाँ पे मौजूद हैं। यकीनन उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों में होंगे जो आइंदा आने वाले इवेंट्स में इस खेल को अपनाएंगे, इसको साथ लेके चलेंगे। मैं आपको एक बड़ी हैरतअंगेज़ बात बताता हूँ कि ये वो रेसिंग पिजन का जो स्पोर्ट है, ये एक ऐसा खेल है, इसमें हर तबके का बंदा यहाँ पे मौजूद है। मैं अगर आपको एक बड़ी हैरतअंगेज़ बात बताता चलूँ, खैर एक तो आपको तला भाई ने बता दी कि मेरे साथ मेरा बेटा इस वक्त मौजूद है। ये इस चीज़ की अलामत है, ये इस चीज़ का साइन है कि मैंने ये महसूस किया कि ये शौक़ वाकई रीज़नेबल लोगों का है, शौकीन लोगों का है, और जो अपने टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, ये उन लोगों का शौक़ है। और इसी वजह से मेरा बेटा भी आज मेरे साथ में शौक़ है। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बड़ा मैसेज और क्या होगा कि ये एक बाकायदा अच्छा शौक़ है और अच्छे लोग इसको करते हैं। इसके बाद एक और हकीकत आप लोगों को बताता चलूँ, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपके गोश गुजार करता चलूँ तो इस वक्त ये स्टेज पे जो लोग आपके सामने हैं, आपको बता दूँ कि इनमें 3 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ वकालत के शोबे से है। एक जो हमारे वकील साहब हैं आसिफ भाई, आसिफ घुमरो भाई हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, सिंध बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट है। उसके बाद हमारे जो आज के मेहमान खसूसी पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है लाहौर से। और बंदा नाचीज़ जो आपके साथ इस वक्त बात कर रहा है, मैं खुद पंजाब बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ और रावलपिंडी से मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। इसका मतलब है कि बड़े लर्नड लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग इस शौक़ में शामिल हैं। इसका मतलब यही हुआ कि इस शौक़ को करना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है कि हम इस तरह की जो दूसरी तीसरी जो हमारी एक्स्ट्रा मसरूफियात होती है या कोई खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की नेगेटिविटीज़ होती है, वहाँ पे हम लोगों का जो है वो ताल्लुक़ इस तरह से नहीं रहता। उसके बाद बाकी बात अगर कोई और भाई यहाँ पे आएगा तो वो कर देगा, लेकिन एक चीज़ रहीम यार खान के हवाले से मैंने महसूस की, मैं चाहूँगा कि मैं उसको यहाँ पे लाजमी डिस्कस करूँ। 1-2 मिनट आपसे मज़ीद लूँगा। हर इलाके में पाकिस्तान का जो कोई भी शहर है, उस शहर में बहुत सारे क्लब मौजूद होते हैं। हर जगह पे कोई ना कोई जो ताल्लुकात की खराबी बनती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स की किसी दूसरे को बात बुरी लग सकती है। हो सकता है कि उसका अमल जो है वो बुरा ना हो, लेकिन अगले को समझने वाले को बुरा लगता है। बात यह है कि कोशिश करें, अब रहीम यार खान में भी इस वक्त क्लब मौजूद है, मेरा उनको मैसेज है, कोई मुझे बड़ा भाई समझ ले, बड़े भाई होने की हैसियत से बात को समझे, कोई मुझे छोटा भाई समझ ले, छोटा भाई होने की हैसियत से बात को सुन ले, और कोई मुझे अपना बेटा समझ ले और वो बेटे की बात की हैसियत से समझ ले। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने मेरी बात को समझना कैसे है। मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है कि रहीम यार खान ने एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन इस दफ़ा अचीव किया, और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये जितने क्लब यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। बड़ी अच्छी टीम बनेगी, ये लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ बल्कि हर बंदा ये कहता है कि ये जो कबूतर है ये बेसिकली अमन का निशान है, ये मोहब्बतें फैलाने वाला करता है। मैं आप लोगों में से गुजारिशात करता चलूँ कि मेरा कहना है कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो इसी शौक की वजह से एक दूसरे को जानने लगे। मेरा कहना इससे पहले चले जाए तो शायद कोई किसी को ना जानता होगा। मेरी दस्ता गुजारिश है आप तमाम लोगों से, पूरे रहीम यार खान से, कि जितने भी क्लब्स आप लोग मौजूद हैं, अपनी अदावतें जो दिलों में बातें हैं उनको ख़त्म कर दें। एक चीज़ है, वो कहा जाता है कि थोड़ा सा खुद झुक जाए, थोड़ा सा अगले को झुका लें, तो वो मामलात ऐसे बनाएं
कि ये मोहब्बतों का सिलसिला चल निकले और एक अच्छी टीम, एक मुनज़्ज़म टीम बने और पाकिस्तान को, इस पंजाब को रिप्रेजेंट करे पूरे पाकिस्तान में, पता लगे कि रहीम यार खान में भी कोई क्लब मौजूद है और कितने अच्छे खिलाड़ी, कितने अच्छे बिजनेस को टच कर रहे हैं। मेरी फिर आप लोगों से गुजारिश है, मेरी बात को सोचिएगा, जो दिलों में इस तरह की अगर कोई बातें हैं उनको बराए मेहरबानी ख़त्म करें, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। मैं आप सब लोगों के नाम आप सब लोगों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश करता जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर झुकने से तुम्हारी इज्जत में कोई कमी आए तो खुदा की कसम क़यामत वाले दिन लोग इज्जत को मुझसे लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद अब अगर कोई बंदा ये सोचे कि अगर मैं झुकूंगा तो मेरी इज्जत की शान में फ़र्क आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के नाम एक पैगाम देता चलूँ, उसके बाद आपसे गुजारिश फिर करूँगा कि इन कबूतों और अदालतों को कुछ देर के लिए साइड पर रखें। एक सोशल मीडिया पे एक हमारे बड़े अच्छे लिखने वाले हैं, उनसे मैंने सुना था और आज दिल किया कि रहीम यार खान वालों के नाम, उन तमाम लोगों के नाम, उन तमाम भाइयों के नाम कि जो शायद एक दूसरे से थोड़ा सा नाराज़ होकर बैठे हैं, उनके नाम मेरा ये पैगाम है। और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। किसी बशर में हज़ार खामी, किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहेगा। किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए, मनादी कहते हैं जो ऐलान करते हैं तो ढोल बजा के पुराने ज़माने में मनादी की जाती थी, तो कहते हैं कि अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें करे दे, तुम्हें मनाए, तुम्हारी हस्ती के गीत गाए, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो। बात वही आ जाती है कि जब किसी में नाराजगी हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बाय कैरेक्टर बाय नेचर के, वो इस चीज़ को हवा देते हैं, वो इस चीज़ को कहते हैं, उसको कुरे देते हैं कि बताओ भी वो फलां गंदा है, फलां अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई नहीं है कि हम लोग किसी इंसान को डिग्री दें। तो कहते हैं कि तुम्हारी हस्ती के गीत गाए, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, तो चुप ही रहेगा। जवाब ये है, दलील ये है, दलीलें देने को तो मेरा ख्याल है कि हम लोग सबसे आगे हैं, जवाब देने के लिए हम लोग सबसे आगे, लेकिन जहाँ पे झुकने या मोहब्बत की बात आती है वहाँ पीछे हो जाते हैं। कि जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हमाकतों को वो जानता है, वो देखता है। ज़ईफ़ लम्हों की लग़्ज़िशों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप। जब वो चुप है तो फिर एक इंसान का आपका और मेरा क्या काम बनता है कि हम किसी की बात करें, किसी की बुराई करें या किसी के बारे में ऐसी बात करें कि वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ रिश्तों को, कुछ लम्हों को, कुछ मोहब्बतों को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, कुछ मोहब्बतों को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। तो कहते हैं कि मोहब्बत जो है वो लफ्जों की मोहताज नहीं होती, जो मोहब्बत है वो अमलों की मोहताज होती है। अमल करके देखें। और उसके बाद सराइकी के शहर में मौजूद हूँ, सराइकी में एक शेर आपके नाम करूँ। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में इस शेर को सुनने के बाद, मैंने बहुत अर्सा पहले सुना था और मैंने इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ दी। और वही शेर आज सराइकी का शेर है और सराइकी भाइयों के नाम करके इजाज़त चाहूँगा कि तू मेहनत कर, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू दीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने। थैंक यू फरार भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने हम सब जितने भाई हैं
बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव पैगाम दिया, सब भाइयों की हौसला अफजाई की, मज़ा आ गया। बहुत थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और आखिर में इख्तिताम में मैं अपने इख्तिताम से पहले अपने जो आज के चीफ गेस्ट हैं और अपने मैं गुजारिश करूँगा अपने हमारे रहीमिया का डिसिप्लिन क्लब के सदर और जो हमारे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इस सीज़न रेस में हिस्सा लिया, उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ स्टेज पे आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट रियाज महमूद का बॉस आपको उनकी ट्रॉफी प्लीज़ उनको हैंड ओवर करें। रियाज भाई प्लीज़ गुजारिश करूँगा जी सर। थैंक यू। थोड़ी देर में हम आपकी सरप्राइज खाने का इंतजाम किया गया। सबसे आखिर में हमने हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नासिर नाइल भाई, मैं उनसे गुजारिश भी करूँगा कि वो यहाँ पे आए और थोड़ी सी हमारे साथ चंद बातें भी करें। उससे पहले मतलब वो चंद बातें करें और हमारे उनकी तरफ से एक बहुत प्यारा तोहफा हमारे बेस्ट लॉफ्ट ऑफ द ईयर 2022 के जो टोटल 500 रेसेस खेल के जिनकी सबसे ज़्यादा पोजीशन या पॉइंट्स बने उनके लिए नासिर भाई की तरफ से बहुत प्यारी ट्रॉफी। मैं अपनी जो टीम है फ्लाइंग हॉर्स लॉफ्ट की उससे गुजारिश करूँगा तारिक भाई, विजय भाई और जुबैर भाई आए और बेस्ट लॉफ्ट ऑफ द सीजन की ट्रॉफी नासिर भाई से वसूल करें। बेस्ट लॉफ्ट ऑफ द सीजन भाई संतोष प्लीज भरपूर डालिए, भरपूर डालना। नीचे करें जी, और नीचे जी। कांग्रेचुलेशन टीम फ्लाइंग ये की देर है सर। आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये सब दोस्त ऐसे होंगे। पहले तो आप लोगों की इज्जतों का, मोहब्बतों का शुक्रिया, और दूसरी तरफ हमें भी आप लोगों से मोहब्बत है। ये सामने मेरा चहीता खड़ा वीडियो बना रहा है, जो मोहब्बत आप दोस्तों की हमें खींच लाई है इधर। और जबकि मेरे घर वाले कह रहे थे कि लोग इस मौसम में कहाँ कहाँ ठंडे इलाकों में घूमने जाते हैं, तुम कहाँ गर्म इलाकों में जा रहे हो। तो मैंने कहा कि हम किसी की मोहब्बत में जा रहे हैं, तो ये हमारे भाइयों की मोहब्बतें हैं जो हमें खींच लाई हैं इधर तक। और इस दफ़ा तो हमने अनाउंस नहीं कर सके, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप दोस्तों के लिए मेरी तरफ से अनाउंसमेंट है। सुनिएगा प्लीज साहब कि जो भी लॉफ्ट ऑफ द ईयर होगा, अच्छा लॉफ्ट होगा अगले साल का 2023 का, उसको जोश बॉल की लाइन से 2 बच्चे मेरी तरफ से मेरे 10 प्लेयर के मिलेंगे गिफ्ट। और जो दोस्त नीचे की पोजीशन में होगा, जिनको हमारे भाई ने भी आज 3 भाइयों के नाम दिया, हम उनको भी कुछ ना कुछ देंगे, ताकि वो ये ना समझें कि यार सिर्फ जो ऊपर आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है। और ये मेरी तरफ से अनाउंसमेंट थी। बाकी मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि जब भी आप लोग शौक करें तो मिल के करें। अगर आपके शहर में 2 क्लब हैं, 3 क्लब हैं, अगर वो मिल के 1 क्लब बन जाए तो आप लोगों के लिए शौक आसान भी हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा, आप लोगों के अखराजात कम हो जाएंगे। और आप लोगों का शहर जो है इस शौक में इतना आगे नहीं है, लेकिन अभी आगे आ रहा है, क्योंकि मुझे पता लगता है कि बर्ड जब सेल होते हैं कहाँ जा रहे हैं, किस तरह हो रहा है, तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। वो इसी सूरत आप आ सकते हैं कि जब आपके 2-3 क्लब अगर हैं वो 1 हो जाए, और 1 होकर आगे आए तो आप लोग अपने शहर का, अपने क्लब का काफ़ी नाम ऊपर लेके आ सकते हैं, जैसे बाकी पाकिस्तान के शहरों ने कर रखा है अपना नाम। जैसे हमारा रावलपिंडी क्लब है, इस्लामाबाद क्लब है, पेशावर के क्लब हैं, जब आप और शहरों में देखें तो ऐसे आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। जो भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी पैसा लगा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने जो दोस्त हैं कुछ रुके हुए हैं जिनके और क्लब हैं उनको मनाया जाए और उनको अपनी तरफ खींच के लाएँ, ताकि आप लोगों को आगे हम देखना चाहें। क्योंकि हमारी सपोर्ट, स्पेशली हमारे 3 भाइयों की सपोर्ट, ये मेरे बड़े कहते हैं चहीते फेवरेट भाई हैं, और इनकी मोहब्बत में हम कहाँ से कहाँ आगे। एक मेरे भाई फराज भाई बैठे हुए हैं, अब अपना ऑप्शन ग्रुप भी एक रन कर रहे हैं जिसमें आप तकरीबन सब लोग की ऐड है, तो हमारे ऑप्शन ग्रुप की तरफ से भी आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे आप लोग सब मिलकर एक क्लब बनाए तो वो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नासिर भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि
पाकिस्तान में रेसिंग पिचेस के सबसे बड़े इम्पोर्टर, इनका नाम इसलिए मैंने इम्पोर्ट किंग रखा हुआ है क्योंकि वाकई किंग है। क्योंकि ये देखिए जैसे इन्होंने हिलिया का रेसिंग पिचिंग क्लब मेंबर्स के लिए इतनी प्यारी इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है कि कमिंग सीजन में जो बेस्ट ड्रॉप ऑफ द सीजन होगा उनके लिए भी बढ़ रहा है बहुत अच्छी लाइन्स में से 200 की, और जो पार्टिसिपेंट सबसे निचली पोजीशन में होगा उनके लिए भी बढ़ रहा है। एक बार सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। इसके बाद ये कि सब जो पोजीशन होल्डर है उनसे गुजारिश है कि यहाँ पे आते हैं और जितने मेहमान हैं उनके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए। उसके बाद बिल्कुल हम खाने का स्टार्ट करते हैं, रिफ्रेशमेंट का स्टार्ट होगा। प्लीज़ सारे पोजीशन होल्डर का पिन ट्रॉफी लेके आइएगा, यहाँ पे एक ग्रुप फोटो हम कर लें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सब आने वाले भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब प्लीज़ खाना खा के जाइएगा। सब पोजीशन होल्डर प्लीज़ यहाँ पे आ जाए और एक ग्रुप फोटो हो जाए हमारे सारे मेहमानों के साथ। But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 Then will you get bored?